Yes, good evening. Okay, so once again we are going to start with this topic. Plant physiology का मेरे ख्याल से last topic है हमारे लिए, that's transporting plants for 11th standard. 12th में कुछ रहेगा अलग से, तो that we will study. Now transport in plant, ये नाम में ही सब कुछ आता है. It is all about how the transport mechanism takes place. अभी transport के लिए तो दो अलग अलग tissues होते हैं. कौन कौन से? First one is the xylem and the other one is the phloem. Correct? Now, how this transport takes place through the xylem and phloem, because xylem is responsible for transport of the cell sap, that is water along with the minerals, and phloem is responsible for transport of the food material. ठीक है, तो दोनों के लिए हम लोग एक छोटा सा ये कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले कि हाउ दिस मैकेनिज्म, मतलब हम लोगों को ये पता है कि एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर विल टेक प्लेस थ्रू द रूट हेयर्स, देन इट इज कैरिड टू द कॉर्टिकल टिश्यू, उसके बाद फिर आता है जाइलम में, फिर जाइलम में इट स्टार्ट्स फॉर्मिंग अ जाइलम कॉलम, and then with the help of root pressure and transpiration pull, the water is pushed to the different parts of the plant. Phloem will help in conducting the food to in both the direction, that is upward as well as downward direction. तो ये सब हम लोग already जानते हैं, हम लोगों ने ये पढ़ा भी है और हम लोग ये जानते भी है. Okay, but how this exactly this mechanism takes place, उसके पीछे क्या logic हो सकता है, what are those different concepts which are involved in this, that we are going to understand here. Now, before we start understanding how the transport takes place, we must know and understand what are the different sources of water for plant. What is the source of water for plants? From where the plants will get water? Obviously from the soil. दूसरा कोई है ही नहीं plant के लिए, बराबर है? Other than soil, there is nothing from where the plants will get the water. Correct? ऐसा कभी होता नहीं है कि water will be absorbed directly by the leaves through the stomata or it will be absorbed directly by the stem. ऐसा कुछ होता नहीं है. So it has to, the water जो एक source है, like rain is the commonest source of water, so it falls on the ground, then it is sipped into the soil, and from there the water will be absorbed. So that is why rain, water and water cycle becomes the most important factor or an activity which is essential for the overall growth of the plant and absorption of water within the plant. So as you people have rightly said, for the water, the source of water for the plants has always been the soil, because we all know that inside the soil we have the roots, or rather the plants will have the roots, and the roots will help in absorption of water because they have the root hairs. Okay, so pani absorb hoga, absorb hoke, then it is transported or carried through the stem, and from the stem then it reaches the leaves, where inside the leaf, where and how this water is used. So inside the leaves, of course the leaves are made up of the cells, so they will have a green colored pigment known as the chloroplast, and that helps in splitting of the water molecule to produce what, to produce food. So कौन सा food बनता है, that is carbohydrates. तो ये बनना चालू हो जाएगा. Get in this, and that is why water is essential, water is necessary. ठीक है? Yes, so photolysis of water will take place. Very good. So breakdown, splitting of water molecule will take place. ये हम लोगों ने already पढ़ा है, photosynthesis chapter में काफी detail में पढ़ा है. ठीक है? So when it comes to sources of water, as we all know that the primary or the only source for water is the soil. तो soil से ही पानी अंदर आएगा. Now inside the soil अभी water कैसे form में होता है, soil के अंदर water कैसे होता है? जैसे for example the soil will have these large pores, we call them as macropores, and the smaller pores, they are called as the micropores. ठीक है? And the soil is porous is what we commonly say, right? And the water will start seeping in through these pores when the rainfall takes place. Okay, now how this water is present in the soil, meaning what are the different types of water in the soil. जैसे for example there is one type of soil water known as the hygroscopic water. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं सारे. हाइग्रोस्कोपिक वाटर का मतलब क्या आता है, द वाटर मॉलिक्यूल इज हेल्ड टाइटली अराउंड द सॉइल पार्टिकल्स बाय एडिजन. तो ये सारे सॉइल पार्टिकल्स रहेंगे ना, तो उसके आजू बाजू में बाय एडिजन द वाटर मॉलिक्यूल इज टाइटली प्रेजेंट, इट इज हेल्ड टुगेदर. इसको हम लोग बोलते हैं हाइग्रोस्कोपिक वाटर. मतलब सॉइल के अंदर जब पानी आता है तो जो कीचड़ बनता है, सो दैट इज दैट वाटर, हाइग्रोस्कोपिक वाटर. विल दिस
Student, just a minute. ओके, आ गया मैं वापस. कैन यू हियर मी? यस सर. बीच में ये कॉल आ गया था, तो इसके लिए मुझे एज यूजुअल मोबाइल डेटा चालू है मेरा. Okay, so as I was talking about this type of soil, so this is known as hygroscopic water. Now, will this water be available for the plants to absorb? ये पानी absorb कर सकते हैं क्या plants? The one where the water is actually tightly adhered. So obviously no. So plants cannot absorb this type of water. Okay, प्रज्ञा कुछ बोलना है आपको? सर मुझे वो सॉइल का लार्ज मैक्रोपोर्स और स्मॉल माइक्रोपोर्स नहीं समझा. अरे, the soil has these particles ना, मतलब the soil is porous is what we commonly say, right? तो यस. सॉइल के अंदर ऐसे बहुत सारे पोर्स होते हैं, जो लार्ज होते हैं उसको हम लोग मैक्रोपोर्स बोलते हैं, और जो स्मॉल पोर्स रहेंगे उसको हम लोग माइक्रोस्पोर बोलते हैं. माइक्रो. ओके. एंड द वाटर विल स्टार्ट गेटिंग सिप्ड इन थ्रू दिस, मतलब पानी इसमें से अंदर जाएगा. ओके सर. This is actually a hygroscopic water, and this hygroscopic water is obviously not available for the plants for the absorption. तो यहाँ पे absorption नहीं होगा. Then we have one more type of water, जैसे for example combined water. When I say combined water, मतलब क्या? This is a type of water which is combined with certain solutes present within the soil. जैसे aluminium होगा, silicon होगा, etc. So this water is now present as a hydrated oxides. Okay, not as a typical water, but it is present in the form of a hydrated oxides. Obviously, this water will also not be available. तो ये पानी भी plants को available नहीं रहेगा for absorption. Correct? So we have hygroscopic water, we have combined water. Both these waters are bound called as the bound water. When we say bound water, meaning what? They are bound with some of the other particles, some of the other elements which are present in the soil. इसके लिए हम लोग उसको बाउंड वाटर बोलते हैं. एंड दिस वाटर विल नॉट बी अवेलेबल फॉर द प्लांट्स फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट और अदर एब्जॉर्प्शन. Then we have one more type of water. This is known as gravitational water. Gravitational water का मतलब क्या आता है? The one which is flowing through these pores and the spaces and then is entering and reaching to the reaches to the water table. मतलब पूरा नीचे तक जाएगा. So the water which goes down through a large pores between the soil particles and reaches the water table. तो पूरा वाटर टेबल तक ये चला जाएगा. वी कॉल दिस एज ग्रेविटेशनल वाटर. जैसे इफ वी टेक द एग्जांपल, अभी यहाँ पे अगर आप देखते हो ना, तो दिस इज हाउ इट विल लुक लाइक, है ना. दीज आर द लेयर्स ऑफ द सॉइल. तो यहाँ पे द वन विच इज कंसिडर्ड एज दिस पर्टिकुलर जोन ऑफ सैचुरेशन, तो यहाँ पे ये पूरा
पानी रहेगा. So we call that as reserve water. Now will this reserve water be available for the plants? Obviously no. So this water is also beyond reach for the plants. मतलब plants के root यहाँ तक पहुंच ही नहीं सकते हैं. Meaning the gravitational water is also not available for the plants. ये लो last slide अनन्या. हो गया? ठीक है. So this water is also not available. तो ये भी नहीं रहेगा. Okay. So अगर हम लोग देखते हैं, there is one more water known as the capillary water. Now what are capillaries? These are the small pores which are formed, which are continuous, which are formed within the soil. Okay. तो luckily क्या होता है ना, where the water is held in capillary spaces between the non-colloidal soil particles. The soil particles which are not getting diffused or getting colloided with the water. So non-colloidal जो soil particles रहते हैं उसके बीच में ऐसे बहुत सारे spaces आते हैं. So these spaces are very small. इसके लिए हम लोग बोलते हैं capillary water. ग्रेविटेशनल वाटर अमन ये होता है जो डीप इनसाइड द सॉइल, डीप रिजर्व्स में चला जाता है और वहां तक हमारे प्लांट के रूट्स ही नहीं जा सकते हैं. उसको हम लोग बोलते हैं ग्रेविटेशनल वाटर. सो दैट इज बियॉन्ड रीच फॉर द प्लांट्स. तो वहां तक प्लांट पहुंच ही नहीं पाते हैं. So even though the water is available, still the plant root cannot reach up to that particular level. So again, that gravitational water is also not available. So we have this capillary water, and this water is now available for the plants. Get in this? So plants जब absorb करते हैं water को, तो वो कौन सा water होता है? That water is known as the capillary water. What is capillary water? It is the water which is held in capillary spaces between non-colloidal particles. मेरा voice का problem आ रहा है? No sir. लोहिता सिंह की voice का problem है कुछ. Clear है ना? हाँ, ठीक है. लोहिता एक बार आपका नेट चेक करो बेटा. अच्छा, अमन को भी प्रॉब्लम आ रहा है वॉइस का. तुम लोग तुम्हारा नेट चेक करो यार. अभी यहाँ पे तो सब ठीक चल रहा है. एनीवे, सो द कॉन्सेप्ट इज दैट देयर आर 3 टाइप्स ऑफ वाटर. कौन कौन से? सबसे पहला था ग्रेविटेशनल वाटर, second one is hygroscopic water, and the third one is combined water, and all these 3 waters are not available. ठीक है, not available for the plants for absorption. So what is available for the plants is the capillary water only. तो मतलब पानी जब absorb होता है तो that gets absorbed only through the capillaries. ठीक है, समझ में आ रहा है? ये पिक्चर का गलत मीनिंग मत लो. इट इज रिलेटेड टू योर वाटर अवेलेबिलिटी इन द सॉइल. ओके, गुड. चलो, तो ये हो गया हमारा टिपिकल कॉन्सेप्ट ऑफ हाउ एंड व्हाट टाइप ऑफ वाटर इज अवेलेबल नाउ. ठीक है ना. सोर्सेस ऑफ वाटर में अगर हम लोग देखते हैं तो हाउ द वाटर विल बी एब्सॉर्ब, तो कुछ मैकेनिज्म्स आते हैं. जैसे देयर इज वन मैकेनिज्म नोन एज इम्बाइबिशन, देयर इज वन मैकेनिज्म नोन एज डिफ्यूजन, then there is something known as facilitated diffusion. अभी facilitated diffusion का मतलब क्या आता है? The one which is the diffusion which is done with the help of some other agencies or some other molecules or particles. तो उसको हम लोग बोलते हैं facilitated diffusion. देखते हैं क्या क्या होता है. अभी जैसे for example as I said no, so the physical processes which are involved in the absorption of water. सोर्स तो पता चल गया कौन कौन सा है, but there are different processes which are involved here जिसकी वजह से पानी का absorption होता है. जैसे for example imbibition is there, for example diffusion is there, for example osmosis is there, and even the facilitated diffusion. So these are all the different types of physical processes which are involved in the absorption of water. ठीक है, कौन सा लास्ट स्लाइड ऋतुजा? ये वाला. इसमें कुछ है ही नहीं बेटा, हम लोग अभी इसी कॉन्सेप्ट को पढ़ रहे हैं ना, तो मैंने सिर्फ इसको एक्सप्लेन किया. डोंट राइट दिस, यू कैन राइट दिस. ठीक हो गया? सबको समझ में आ रहा है? देखते हैं एक एक करके कि ये सारे प्रोसेसेस है क्या एंड हाउ डू वी अंडरस्टैंड देम.
हाँ आएगा. अरे वाह, Shravani is asking difference between diffusion and osmosis. Can anyone tell me what is the difference between diffusion and osmosis? बोलो जल्दी. For osmosis, semi-permeable membrane is needed, but for diffusion, it is not needed. For osmosis, semi-permeable membrane is needed, but for diffusion, it is not needed. Very good. And therefore, osmosis generally is seen for Osmosis is from Water. region of higher concentration to lower concentration. region of its higher water concentration to the region of its lower water concentration, right? Sir, Yes. but diffusion also requires concentration gradient, right? So like Diffusion also requires concentration gradient. वो तो मैंने बोला ही नहीं ना. osmosis is for water and diffusion is for हाँ, वही मुझे बोलना था कि osmosis therefore जैसे one requires semi permeable membrane, another doesn't require semi permeable membrane. So where and for what osmosis will be required? Osmosis will be required for the transport of water. बराबर. तो सानिका जो बोल रही थी वो सही है. ठीक है. Whereas diffusion is mostly for the gases and the solids. तो उसके लिए जो मैकेनिज्म होता है ट्रांसफर होता है उसको हम लोग डिफ्यूजन बोलते हैं. हाँ, यहाँ पे हम लोग वाटर एब्जॉर्प्शन की बात कर रहे हैं ना, लेकिन डिफ्यूजन भी श्रावणी समझना पड़ेगा अपने को, क्योंकि डिफ्यूजन की वजह से भी वाटर एब्जॉर्प्शन हो सकता है. अगर सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन बदल गया तो वाटर एब्जॉर्प्शन हो सकता है. श्रावणी इनडायरेक्टली हेल्प करेगा ना वो. हाँ, चलो देखते हैं. ओके. So now first one is the imbibition. Now what is imbibition? It is the adsorption of the water by hydrophilic compounds. Adsorption मतलब क्या? The water particles will start getting stick to the particular surface and then it will get absorbed. So without forming a solution. ठीक है? So we call this particular, जैसे for example wood is the hydrophilic. आप लोगों ने देखा होगा ना कि रेनी सीजन में दरवाजे फूल जाते हैं, एकदम टाइट हो जाते हैं. तो ये क्यों होता है? वो बेसिकली इसके लिए होता है बिकॉज डोर्स आर मेड अप ऑफ वुड एंड वुड इज हाइड्रोफिलिक, मतलब वाटर लिविंग. तो अगर मॉइस्चर एनवायरनमेंट में ज्यादा रहेगा तो देन एक्चुअली द वुड विल स्टार्ट अट्रैक्टिंग और एब्सॉर्बिंग द वाटर बाय इम्बाइबिशन. करेक्ट. सो इट विल स्टार्ट गेटिंग स्टक टू द सरफेस ऑफ द वाटर. तो उसको सरफेस ऑफ द वुड we call that as imbibition and then it gets absorbed. ठीक है. So therefore naturally this will need a gradient as well as the affinity. Gradient भी चाहिए और affinity भी चाहिए. मतलब moisture environment में ज्यादा है और wood में कम है. And then of course there is an affinity. जैसे wood has an affinity for water, लेकिन वही अगर आप metal की बात करते हो तो metal does not have any affinity. Are you getting this? Are you getting this? हाँ. So this is known as imbibition. ठीक है. So we can say in a way it could be a type of diffusion as well. Type of diffusion, not the typical diffusion. Okay. पता नहीं यार, मेरे पीछे कोई तो भी जोर जोर से कुछ तो भी बजा रहा है. Are you getting this? The one which is known to increase the volume, क्योंकि यहाँ पे अभी वॉल्यूम बढ़ गया ना वुड के अंदर. ठीक है. वुड ने वाटर को एब्जॉर्ब कर लिया, उसके बाद वाटर का एब्जॉर्प्शन हो गया तो वॉल्यूम बढ़ गया. सो इन अ वे इज टू इंक्रीज द वॉल्यूम. ठीक है. Now in a plant cell, as we all know that the cell wall is made up of cellulose plus pectin and it is freely permeable. ठीक है. So this cell wall is going to be freely permeable. Just a minute.
ओके आ गया मैं वापस, सॉरी. Yeah, so I was saying that as usual, I have a lot of disturbances because of which I have to go offline. क्या ही कर सकते हैं? Can you all hear me? शेमड़े लोग सुनाई दे रहे हैं मेरी बात? हेलो, सो गए सब लोग? ये देखो गिटार बज रहा है. अरे मेरा क्या प्रॉब्लम होता है मैं तुम लोगों को बोलता हूँ. आई एम वर्किंग ऑन माय मोबाइल डेटा, क्योंकि इधर का हमारा वाईफाई अभी भी ठीक से ढंग से काम नहीं कर रहा है. या एंड आई एम नॉट एट होम. जिओ फायबर चलावते मी वोल्टेज उडी नको मारू, उडी मारू नको. तो प्रॉब्लम मेरा ये हो रहा है. तो फाइनली वी हैव डिसाइडेड कि हम लोग एक और वाईफाई कनेक्शन लेंगे. तो अभी वो आया है जियो वाला, तो वो हम लोग उनको अभी लगा के दे रहा है अपना नेटवर्क फाइबर का. तो देखते हैं. और उसकी वजह से क्या होता है, फोन कॉल आता है. फोन कॉल आया और कुछ इंपॉर्टेंट कॉल्स होते हैं, आई हैव टू पिक. तो फोन कॉल मैंने पिक किया तो नेटवर्क बंद. ऐसा प्रॉब्लम. चलो एनीवे, इम्बाइबिशन का ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया था कि रेनी सीजन में जब कभी भी व्हेनेवर देयर आर रेनी सीजंस, ये वुड जो रहता है, जैसे डोर्स हमारे होते हैं ना, वो एकदम फूल जाते हैं. सो द स्वेलिंग ऑफ द डोर्स एंड द विंडो
frames during monsoon will take place, and this is all a effect of imbibition. जैसे ही हीट बढ़ जाएगा, जैसे ही वार्मथ आ जाएगा एनवायरनमेंट में, द वाटर विल बी लॉस्ट, मीनिंग उसका ट्रांसपीरेशन हो जाएगा या फिर पानी निकल जाएगा डोर में से, द डोर ड्राइज अप एंड देन अगेन इट कम्स टू द ओरिजिनल पोजीशन. ठीक है, सो दिस इज व्हाट वी कॉल दिस एज द इम्बाइबिशन. कौन सा लास्ट स्लाइड चाहिए रे? ये वाला, ये तो हो गया था. दिस वन. Yes, sir. ओके Done, sir. Thank you. ओके. एक्सक्यूज मी सर. यस, बोलो कौन है? सर अनन्या. सर Sir, जब रेन वाटर की वजह से जो वॉल्स में भी पानी जमा हो जाता है वो भी इम्बाइबिशन की वजह से ही होता है. हेलो. Design, sir. कैन यू हियर मी? यस सर, नाउ आई हाँ, तो वाटर मॉलिक्यूल में दो प्रॉपर्टीज होते हैं ना, एडिजन एंड कोहिजन. एम. ऐसे दो प्रॉपर्टीज होते हैं, करेक्ट. सो तो दीवार के ऊपर जो पानी रहता है दैट इज बिकॉज ऑफ एडिजन. ओके. दिस. हाँ, Yes. फिर वो दीवार गीला रहेगा, फिर उसके ऊपर फंगल ग्रोथ आना चालू हो जाएगा. नहीं सर, यहाँ वैसे पे नहीं. क्या हो रहा है? यहाँ पे एड्सॉर्प्शन हो रहा है बेटा. मतलब द वाटर इज लिटरली एंटरिंग इनसाइड द सेल्स, द वन विच आर डेड. Okay. दीवार में वैसा नहीं होगा ना. Sir, I'm talking about the water which gets collected into the plaster. And then there is a protrusion seen on the walls. प्लास्टर में पानी कलेक्ट हो जाता है? ये मैंने कभी देखा नहीं है. तो प्लास्टर में पानी कलेक्ट होता है तो उसमें पोर्स रहेंगे ना, इसके लिए. तो फिर वो adhesion ही है. Student, just a minute, please. Have patience. Can't help it.
ओके, आ गया मैं वापस. आई एम आई बैक. Yeah, there are some calls which are coming up which are really important. That's why I'm picking them up. Can't help it. लेकिन जब मैं कॉल लेता हूं तो मेरा नेट बंद होता है, जो मेरा बहुत बड़ा तकलीफ है. कुछ कर नहीं सकते. चलो, अच्छा, अनन्या, आर यू देयर? Yes, sir. अनन्या, यहाँ पे क्या हो रहा है ना, देयर इज इम्बाइबिशन में क्या होता है, देयर इज समथिंग नोन एज एडसॉर्प्शन. Okay, and this adsorption is then followed by absorption. Okay, जो शायद दीवार में नहीं होगा ना, because again it is like सीमेंट का बना हुआ है. So water molecule will get stuck on the surface of the wall by the process of adhesion. Okay, sir. हाँ, तो वो दीवार फूलेगा नहीं इसके लिए. लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है ना, वाटर इज लिटरली एंटरिंग इनसाइड ना, पानी इसके अंदर जा रहा है. अभी ये वुड है, तो ये वुड किससे बनता है? सेल से ही बनता है ना, बट दिस सेल्स आर ऑल डेड. अभी इसके अंदर अगर पानी चला गया तो नेचुरली सेल अपने आप स्वेल होना चालू हो जाएगा, और सारे सेल का स्वेलिंग आ गया तो पूरा दरवाजा फूल जाएगा. लेकिन दैट डजंट हैपन विद द वॉल, राइट? Yes, sir. तो वॉल कभी ऐसे देखा है कि आपने वॉल फूल गया फिर वो गर्मी में छोटा हो गया? ऐसा नहीं होता है ना, इट नेवर हैपेंस लाइक दैट. ठीक है, Yes, sir. थोड़ा सा फर्क है. सो देयर द वाटर विल हैव दैट प्रॉपर्टी आल्सो ना, दैट इट विल गेट स्टक. जैसे जाइलम होता है, जाइलम, जाइलम में वाटर इज कैरिड इन द अपवर्ड डायरेक्शन, मीनिंग इट इज कैरिड अगेंस्ट द ग्रेविटी ना. तो रूट प्रेशर तो होता है, बट वाटर हैज इट्स ओन प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन एंड कोहिजन. कोहिजिव फोर्स मतलब वाटर मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ अटैच हो जाते हैं. एडिसिव फोर्स मतलब वाटर मॉलिक्यूल विल गेट अटैच्ड टू द सरफेस, and both the forces will make sure that the water will not fall down. Instead, the water will be carried upward by pressure created by roots. समझा? Yes, sir. हाँ, तो वो थोड़ा सा फर्क है. ठीक है, चलो, ये हो गया हमारा इम्बाइबिशन का छोटा सा कॉन्सेप्ट. ओके, सो जैसे इम्बाइबिशन में सबसे पहले तो फर्स्ट प्रोसेस इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय द रूट्स. एब्जॉर्प्शन हो जाएगा, पहला तो एब्जॉर्प्शन होगा, उसके बाद फिर इम्बाइबिशन का मैकेनिज्म होगा एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड. ओके, जैसे यहाँ पे इम्बाइबिशन सीड्स में भी होता है. सीड्स आर इनएक्टिव और द डॉर्मेंट व्हेन दे आर इन द market, when they are in the shop, when they are kept as it is, so they are generally considered as dormant seeds, right? हम लोगों ने पढ़ा था dormancy of the seed का concept जब हम लोगों ने hormones के बारे में पढ़ा था. When the seed is sown in the soil, we have a micropylar end of the seed, and from there the water will start getting absorbed. मतलब पानी ये सीढ़ी के अंदर आना चालू हो जाता है. That is known as imbibitional pressure. And because of that the seed will germinate. मतलब कैसे होगा? The testa, मतलब the seed coat will rupture, and then the water will start getting absorbed here, and then later on it will develop into a new plant. तो मतलब सबसे पहले क्या होगा? पहले यहाँ पे होगा imbibition followed by absorption. Are you getting this? imbibitional force से क्या हो गया? जो seed coat था वो rupture हो गया, because seed coat started absorbing and absorbing the water, because of which the swelling has taken place. Swelling की वजह से the seed coat has ruptured, और वो होने के बाद then the absorption of water has taken place through the micropylar end. समझा? So this is known as what? This is called as the imbibitional pressure. So that also helps in germination of the seed. तो seed का germination होगा. ठीक, ये हो गया हमारा इम्बाइबिशन. डिफ्यूजन तो आपने को पता ही है. डिफ्यूजन इज नथिंग बट, यस लोहिता, क्या हुआ? लोहिता सिर्फ हाथ ऊपर कर रही है. डिफ्यूजन इज बेसिकली मूवमेंट ऑफ द सब्सटेंसेस फ्रॉम द हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द लोअर कॉन्सेंट्रेशन. बराबर है? एंड दिस डज नॉट रिक्वायर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. तो यहाँ पे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की जरूरत होती नहीं है. सो दैट्स नोन एज व्हाट? दैट इज कॉल्ड एज द डिफ्यूजन. ये सिंपल डेफिनेशन है. विदाउट द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, व्हेन द मॉलिक्यूल्स आर गेटिंग ट्रांसफर्ड फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द लोअर कॉन्सेंट्रेशन, जनरली सीन फॉर व्हाट? डिफ्यूजन का डेफिनेशन इशिता वो, ये देख, डन.
ना डिफ्यूजन में क्या होगा, ऑल द मॉलिक्यूल्स, जैसे हम लोग बोलते हैं ना मॉलिक्यूल्स आर गेटिंग डिफ्यूज्ड, राइट, जो यहाँ पे डायग्राम में फोटोग्राफ में भी दिखाया गया था कि हाउ द मॉलिक्यूल्स आर गेटिंग डिफ्यूज्ड एंड द एंटायर सॉल्यूशन बिकम्स लाइक यू नो होमोजीनियस। जो सॉल्यूशन पहले शायद थोड़ा सा डार्क लाइट ऐसा था, बाद में वो पूरा सॉल्यूशन कैसा बन जाता है, पूरा सॉल्यूशन बन जाता है होमोजीनियस। ओके, तो उसके लिए फिर वो बहुत जरूरी होता है, एंड दैट इज द वर्क ऑफ द डिफ्यूजन। ठीक है, so the process will continue till the time the equilibrium is achieved. Equilibrium matlab the concentration is equal, the diffusion is getting completed, and because it's a process where it is taking place with the concentration gradient, so it doesn't require any energy, तो इसको ATP की जरूरत ही नहीं होती है। So only means of gaseous movement within the plant body, ठीक है, is what diffusion is for। जब हम लोग diffusion की बात करते हैं तो gaseous movement के लिए ये ज्यादा होता है। ठीक है, तो हम लोग जैसे गैसेस का मूवमेंट होता है ना, तो वी कॉल दैट एज डिफ्यूजन। गेट इन दिस, सॉलिड्स का भी मूवमेंट होता है तो वी विल कॉल दैट एज डिफ्यूजन। लेकिन सॉलिड्स का मूवमेंट जनरली प्लांट में इतना कॉमन नहीं होता है, many a times it is against the concentration gradient, so we call that as active transport। if you remember transport in plants में हम लोगों ने दो चीजें पढ़ी थी, पहला था पैसिव ट्रांसपोर्ट और दूसरा था एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अभी पैसिव ट्रांसपोर्ट के लिए जो प्रोसेसेस लगते हैं वो हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इम्बाइबिशन, इट्स लाइक अ पैसिव ट्रांसपोर्ट बिकॉज इट इज टेकिंग प्लेस विद द concentration gradient। डिफ्यूजन इज लाइक अ पैसिव ट्रांसपोर्ट, और इवन फॉर दैट मैटर ऑस्मोसिस इज ऑल्सो लाइक अ पैसिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, so this process will continue till the equilibrium is maintained। so diffusion rates affected are always affected by membrane permeability, temperature and concentration। मतलब rate of diffusion तो वो बढ़ेगा या कम होगा, it all depends on the membrane permeability, how much membrane is freely permeable, तो वो plus the temperature and the concentration। करेक्ट, जितना concentration ज्यादा रहेगा उतना डिफ्यूजन के लिए टाइम लगेगा, क्योंकि डिफ्यूजन कब तक चालू रहेगा, टिल द टाइम द इक्विलिब्रियम इज मेंटेन। तो नेचुरली मॉलिक्यूल्स को ट्रांसफर होने में टाइम लगेगा, और अगर टाइम लगेगा तो नेचुरली डिफ्यूजन रेट जो है वो भी थोड़ा सा बढ़ जाएगा, मतलब the time required for the transfer, so that will also increase। so this is how we see the important part of the diffusion। but as I said, जैसे plant cells होता है, plant cells में ना we have the cell wall which is considered as freely permeable। plant में होता है plasma membrane which is known as selectively permeable। so ऐसे दो अलग-अलग membranes हैं, one is freely permeable, the other one is selectively permeable। so the lipid soluble substances will diffuse through the plasma membrane faster। ऐसा क्यों होता है, because we know that the plasma membrane is made up of what, bilipid layer। तो जितने भी lipid soluble substances होते हैं ना, they will take lesser time, so they will get diffused through the plasma membrane faster। where for hydrophilic moieties movement has to be facilitated। हाइड्रोफिलिक मोइटीज मतलब क्या, वाटर लविंग, जो फैट में डिसॉल्व हो रहा है उसका डिफ्यूजन फास्ट हो जाएगा, लेकिन जो पानी में डिसॉल्व है फॉर दैट इट रिक्वायर्स सम एडिशनल हेल्प। मतलब थ्रू सेल वॉल इट विल गेट ट्रांसफर्ड, water soluble molecules will get transferred, but when it has to get transferred from the plasma membrane it will require some kind of a help। and if you remember, मैंने बहुत बार ये बोला है कि when the molecules are getting transferred from one region to another through plasma membrane is not permeable, but plasma membrane has many channels for all the molecules, so it has to be carried through these channels only। उसी को हम लोग बोलते हैं फैसिलिटेटेड मूवमेंट। तो अब ये एग्जैक्टली है क्या, तो जैसे इफ यू टेक एग्जांपल ऑफ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, मतलब क्या, द डिफ्यूजन ऑफ लार्ज हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन यूजिंग स्पेशल प्रोटीन्स नोन एज द पोरिन्स। ओके, तो मतलब ये स्पेशल प्रोटीन मॉलिक्यूल्स है, या फिर यू कैन से चैनल प्रोटीन्स है, and these special channel proteins are allowing which molecules, the molecules which are hydrophilic, the molecules which are dissolved in the water will start crossing the plasma membrane through these porins। अब ये porins
किसके लिए ज्यादा सेंसिटिव है? हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल, मीनिंग कैन आई से दैट these porins are sensitive to water? That is why we call these porins as aquaporins. Aqua मतलब water. तो ऐसे 8 अलग अलग टाइप के aquaporins होते हैं which are identified, which are present on the plasma membrane, which allows the entry or exit of the molecules which are already dissolved in the water or the one which is hydrophilic in nature. Are you getting this? So मेरे लिए aquaporins क्या बन गया? Aquaporins has helped. Yes, it's a type of protein channel only. लेकिन उसको ये चैनल का काम क्या है? Specifically to transport the molecules which are hydrophilic, the molecules which are dissolved in the water. उन्हीं को ये ट्रांसपोर्ट करेगा. इसके लिए उसको नाम दिया है aquaporins. Because as I said that osmosis or even diffusion when it takes place or osmosis when it takes place direct नहीं होता है, तो उसके लिए भी पानी को भी ट्रांसफर के लिए क्या रहेगा? ये छोटे छोटे पोरिन्स रहेंगे. So we call them as aquaporins. Is it clear? Hello. Yes, Sanika. सानिका वालिम्बे बोलो. You want to say? अच्छा, सानिका को क्या ये चाहिए क्या? हाँ, डिस्कनेक्ट मत होना भाई लोग और उनकी बहन लोग. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है, आगे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होने वाला है. Yes, this specific is known as Arya aquaporins. Why aquaporins? Because एक मिनट बेटा, just give me a minute. हाँ, क्या हुआ बोलो. अच्छा, ये समझ में आ रहा है? एक्वापोरिन्स का कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? The one which is helping in transfer of the water molecules, especially and also especially the molecules, the solutes which are dissolved in the water. Cell sap हम लोग बोलते हैं ना उसको. Cell sap याद है तुम लोगों को? The minerals which are dissolved in the water is known as cell sap. तो ये cell sap इसके थ्रू ट्रांसफर होगा. समझ में आ रहा है भाई लोग और उनकी बहन लोग? समझ में आ रहा है क्या? हेलो, झोपलेगा? झोपू नका रे, जागे वा. चलो, अभी ये जो ट्रांसपोर्ट जो हो रहा है ना, तो इसमें भी फिर मैकेनिज्म आता है ना. जैसे अभी ये मॉलिक्यूल्स ट्रांसफर हो रहे हैं ना एक रीजन से, सपोज ये आउटर रीजन है और ये इनर रीजन है. सो मॉलिक्यूल्स आर ट्रांसपोर्टिंग फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड और फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड. तो ये डायरेक्शनल फोर्स होते हैं. तो ये क्या होता है? जैसे फॉर एग्जांपल वी हैव वन टाइप ऑफ मैकेनिज्म नोन एज यूनिपोर्ट. यूनि का मतलब क्या आता है? वन. मतलब द मॉलिक्यूल्स आर गेटिंग ट्रांसफर्ड ओनली इन वन डायरेक्शन. एक ही डायरेक्शन में होता है. सो द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इन वन डायरेक्शन रिगार्डलेस ऑफ द अदर. दूसरा कैसा भी हो, लेकिन ये मॉलिक्यूल ऐसा ही अंदर ही आएगा, बाहर से अंदर ही आएगा. अंदर से बाहर जाने के लिए दिस चैनल विल नॉट बी यूज्ड. So there are certain channels which will allow movement of molecule only in one direction. We call that as uniport. So either from outside to inside or from inside to outside. समझ में आ रहा है?
So it is known as uniport transport. Correct? Whereas we have one more type, पहले देख लो बाद में लिखो चाहे तो, we have one more type जिसको हम लोग बोलते हैं antiport. Antiport में क्या हो रहा है? Few molecules are entering from outside to inside, few molecules are exiting out from inside to outside. Yes, it can be seen. It is not seen in xylem, Ishita, but it is seen in the cells, cortical cells, epidermal cells. उसमें आपको दिखेगा ये. अभी यहाँ पे क्या हो रहा है? Molecules, both the molecules are getting transferred in opposite direction through same channel, like this. एक ही channel है, लेकिन एक ही channel से different molecules are getting transferred from inside to outside, outside to inside. मतलब opposite direction. So movement of two different molecules in opposite direction. Okay, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? We call that as antiport. अरे बाप रे, खुशी बोल रही है why they are transferred. खुशी to maintain the equilibrium ना, सेल के बाहर सेल के अंदर इक्विलिब्रियम मेंटेन करना पड़ेगा ना, बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा. सो बैलेंस मेंटेन करने के लिए दिस ट्रांसपोर्ट इज रिक्वायर्ड. अच्छा, अगर बैलेंस रहेगा मेंटेन तो विल दिस ट्रांसपोर्ट टेक प्लेस? ऑब्वियसली नो. ठीक है, ये हो गया हमारा एंटीपोर्ट. और उसके बाद तीसरा एक टाइप आता है दैट इज नोन एज सिम्पोर्ट. सिम्पोर्ट का मतलब क्या आता है? Both the molecules, two different molecules are getting transferred in the same direction. So movement of two different molecules in the same direction like this. मतलब दो अलग अलग molecules है, लेकिन हाँ दिखाता हूं मैं, लेकिन एक ही direction में वो ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं सिम्पोर्ट. तो तीन टाइप हो गए. पहला कौन सा हो गया? The first one which we have is known as uniport. Second one is known as antiport. And the third one is known as symport. ठीक है, so we have uniport, antiport and symport. Uniport मतलब molecule is getting transferred only in one direction. Antiport मतलब two different molecules are transferred in opposite direction. Symport मतलब two different molecules are getting transferred in the same direction. ऑफ कोर्स ये हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में भी रहेगा, लेकिन उसका कॉन्सेप्ट थ्योरी थोड़ा सा अलग है ह्यूमंस में और एनिमल्स में. ये हम लोग थोड़ा सा भी प्लांट की बात कर रहे हैं, इसके लिए प्लांट से रिलेटेड हम लोग डिस्कस कर रहे हैं. ठीक है, सब लोगों ने लिखा क्या ये? हाँ, ये चाहिए था प्रज्ञा, ये चाहिए था ना आपको बेटा? सर यूनिपोर्ट. यूनिपोर्ट, ये लो यूनिपोर्ट. सर डन. दिस इज एंटीपोर्ट. Excuse me, sir. यस. So for diffusion, why does the membrane permeability affect its rate? सॉरी फिर से. For the diffusion, why does membrane permeability affect the rate? Why does membrane, of course ना, if the membrane is not permeable for certain molecules, या फिर if the membrane thickness is more, so permeability will reduce ना. और अगर permeability reduce हो गया तो naturally फिर रेट कम ज्यादा हो जाएगा. But फिर कितना मेम्ब्रेन परमिएबल है किसी मॉलिक्यूल के लिए, कितना नहीं है, कितने चैनल्स, कोई पर्टिकुलर सेल्स होते हैं वहां पे चैनल प्रोटीन्स ही कम रहते हैं. So that affects your membrane permeability, right? Okay, got it. So that is why permeability will affect the rate. Yeah. चलो ये हो गया एंटीपोर्ट. डन. एंटीपोर्ट इज डन. यस सर. ओके, और एंटीपोर्ट के बाद फिर आएगा आपका सिम्पोर्ट. सिम्पोर्ट.
सर प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ विच, अच्छा प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ, अच्छा वो ना अल्फा प्रोटीन्स बोलते हैं उसको बेटा, थ्री डायमेंशनल प्रोटीन्स, अल्फा प्रोटीन्स, they are called as the alpha proteins. ठीक है, चलो हो गया। ठीक है, सो हम लोगों ने तीन चीजें पढ़ी, वन इज इम्बाइबिशन, द अदर वन इज डिफ्यूजन, द अदर वन इज फैसिलिटेट। फैसिलिटेट डिफ्यूजन में एक्वापोरिन्स आते हैं। ओके, तो तीन अलग अलग प्रोसेस होती है, कौन कौन से, जैसे यहाँ पे परमियाबिलिटी भी आएगा और ऑस्मोसिस फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में आएगा। ठीक है, तो जैसे हम लोगों ने ये पढ़ा ना, सिम्पोर्ट, फिर एंटीपोर्ट एंड यूनिपोर्ट। ठीक है, और यूनिपोर्ट, एंटीपोर्ट एंड सिम्पोर्ट ट्रांसपोर्ट, राइट। नाउ we talk about permeability. Somebody was asking me, शायद निशिता थी, कि permeability क्या होता है और कैसे होता है। So what is permeability? It is nothing but degree or extent of diffusion through a membrane. यानी कितना diffusion हो रहा है through a membrane, we call that as the permeability of that particular membrane. So on the basis of the permeability of the membrane, Nishita, now concentrate. You will be able to understand this better now. There are different types of membranes. कौन कौन से? चार अलग टाइप आते हैं। कितने टाइप आते हैं? चार। कौन कौन से? सबसे पहला जो आता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं इम्परमिएबल, मतलब नथिंग कैन पास। तो मतलब हियर परमिएबिलिटी इज 0, तो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट के चांसेस ही नहीं है। कौन सा मेम्ब्रेन रहेगा? इम्परमिएबल। डू यू रिमेंबर लिग्निफाइड सेल वॉल? यस, परफेक्ट सानिका, सेल वॉल, बट द वन विच इज लिग्निफाइड। सानिका, नॉर्मल सेल वॉल तो फ्रीली परमिएबल है ना, बट द सेल वॉल विच इज लिग्निफाइड और सबराइज्ड है ना, सबराइज्ड सेल्स याद है तुम लोगों को, जो क्या बनाते हैं प्लांट्स में? कैस्पेरियन स्ट्रिप, बैरल शेप्ड सेल्स वगैरह वगैरह हम लोगों ने डिस्कस किया था। देखो, तो बीच बीच में ऐसे सेल्स होते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं पैसेज सेल्स। तो उनको बाहर से कोई भी ऐसा लाइनिंग नहीं रहेगा सेल वॉल का, राइट। तो सबसे पहला टाइप आता है इम्परमिएबल, नथिंग कैन पास थ्रू। सेकंड टाइप इज परमिएबल, वेयर एवरीथिंग कैन पास थ्रू, जैसे टिपिकल सेल वॉल। The third type of membrane is semi-permeable, only solvents can pass through. We call that as semi-permeable. And the last one is selectively permeable. मतलब क्या? Only selective solutes can pass through. यानी जो चाहिए वही होगा, बाकी के नहीं जाएंगे। We call that as selectively permeable. तो ये चार अलग अलग टाइप आते हैं। कौन कौन से? सबसे पहला, yes, this is under the topic of permeability. ओके आदित्य, परमिएबिलिटी की बात कर रहे हैं हम लोग। तो सबसे पहला आएगा आपका सेमी परमिएबल में, सबसे पहला आएगा नॉन परमिएबल मेम्ब्रेन, फिर उसके बाद आएगा इम्परमिएबल जिसको हम लोग बोलते हैं, उसके बाद आता है परमिएबल, फिर आएगा सेमी परमिएबल, फिर आएगा सिलेक्टिवली परमिएबल। ठीक है, तो ऐसे चार अलग अलग टाइप के मेम्ब्रेन्स, and a typical cell membrane and a typical cell wall will show such concepts. जैसे फॉर एग्जाम्पल सेल मेम्ब्रेन इज बेसिकली नोन एज द सेमी परमिएबल. Why cell membrane is called as semi-permeable? Because it will allow certain substances to enter in and certain substances to exit out. मतलब ये कंट्रोल करता है मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स. दैट इज व्हाई वी कॉल दैट एज सेमी परमिएबल. जैसे यहाँ पे उन्होंने एग्जांपल दिया है, देखो, इट हैज दिस मेम्ब्रेन हैज अलाउड वाटर टू मूव, बट दिस मेम्ब्रेन हैज नॉट अलाउड ग्लूकोज टू मूव. सो मतलब ये क्या हो गया? सेमी परमिएबल हो गया. मतलब किसी एक मॉलिक्यूल को उसने मूव किया, दूसरे मॉलिक्यूल को नहीं किया. यस सानिका बोलो. Sir, what is the difference between semi-permeable and selectively permeable?
आया मैं। सानी कहा, कैन यू हियर मी? Yes, sir. एक मिनट। हाँ, तो क्या पूछ रही थी मुझे? हाँ, डिफरेंस बिटवीन सेमी परमिएबल एंड Selectively permeable. सिलेक्टिवली परमिएबल ना, क्योंकि सिलेक्टिवली परमिएबल का जैसे दिस मेम्ब्रेन कैन बी कॉल्ड एज सेमी परमिएबल। क्यों? क्योंकि इसने एक मॉलिक्यूल को अलाउ नहीं किया, दूसरे मॉलिक्यूल को अलाउ किया। सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन का एक खासियत होता है, इट विल नॉट अलाउ एंट्री और एग्जिट ऑफ सम सब्सटेंसेस व्हिच आर कॉन्स्टेंटली रिक्वायर्ड विद इन द सेल। वो उनको बाहर ही नहीं जाने देगा। Okay. बराबर? It will allow certain substances only to enter in and it will allow certain substances only to exit out. तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन कुछ मॉलिक्यूल्स है जिसकी वजह से ये मेम्ब्रेन बदलते जाता है। Yes, sir. कॉन्सेप्ट बदलेगा बट मेम्ब्रेन विल ऑलवेज रिमेन द सेम। वो तो सेम ही रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल यूरिया एंड यूरिक एसिड लाइक सब्सटेंसेस जो किधर बनता है? लीवर में, करेक्ट? Yes. Yes. Now, if it basically takes place in the liver, so liver cells will only allow that molecule to exit out, right? Yes. अगर जैसे ब्लड सर्कुलेशन में भी वो रहेगा यूरिक एसिड, क्योंकि सर्कुलेशन में आएगा तो यूरिक एसिड ब्लड सर्कुलेशन में होता ही है, यूरिया भी होता है, बट दैट यूरिया एंड यूरिक एसिड विल नॉट बी एबल टू एंटर इनटू द लिवर सेल्स, राइट? Yes. दैट इज नोन एज सिलेक्टिवली पर। Selectively permeable. Yes, sir. ऐसा है, ठीक है। तो छोटा सा डिफरेंस है, बहुत ज्यादा नहीं है, बट मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी विल डेफिनेटली वेरी लाइक दिस। ओके, सो दिस इज अबाउट द परमिएबिलिटी ऑफ द मेम्ब्रेन। तो 4 मेम्ब्रेन याद रखो, द वन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द परमिएबिलिटी, क्योंकि परमिएबिलिटी ऑल्सो टेक्स पार्ट इन what I can say is basically it will help that particular molecule, like permeability will change the rate, करेक्ट? रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है ना वो परमिएबिलिटी की वजह से चेंज हो सकता है। Now this is important concept known as the osmosis. ये तो अपने को पता ही है। Movement of the solvent, that is water, through a semi permeable membrane from which concentration to which? From the region of its higher concentration to the region of its lower concentration. जैसे for example we have a less concentrated solute. When I say less concentrated solution, मतलब यहाँ पे पानी ज्यादा है तो उसको हम लोग dilute बोलेंगे, yes or no? Whereas we have another region where the concentration is more, solution का concentration ज्यादा है, मतलब ये concentrated है। ये concentrated मतलब यहाँ पे पानी कम है। So since in this region the water is more, so we call that as having a structure having more solvent. This region has less water, so the less solvent is present. So meaning the osmosis will take place from the higher water concentration to the lower water concentration, but it requires semi-permeable membrane. ये बेसिक कॉन्सेप्ट थोड़ा सा फिर से दिमाग में रखो, क्योंकि आगे चल के इसके ऊपर ही हम लोगों को ये टॉपिक को बिल्ड करना है। ओके, क्योंकि इसके बाद टर्गर प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, ये सब आएगा, तो वो सब आपको समझ में आना चाहिए। जैसे वी हैव दिस सॉल्यूशन ए एंड सॉल्यूशन बी, दोनों के बीच में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, तो नेचुरली वाटर मॉलिक्यूल का मूवमेंट कहां से होगा? ए से बी की बी से ए होगा। इट विल नेचुरली टेक प्लेस फ्रॉम, यस सर, लास्ट स्लाइड क्वेश्चन पूछा तो लास्ट स्लाइड बोलते हो यार तुम लोग। गुड, बी टू ए। हाँ, वेरी गुड। ये लास्ट स्लाइड देखो, मैं पूछ रहा हूँ क्वेश्चन, सब लोग बोल रहे लास्ट स्लाइड। ई कहाँ है रे? सर आप टाइम ही नहीं दे रहे हो लिखने को। कितना टाइम चाहिए तुमको? अभी 11th खत्म करने का अपने को। अवघड है। बीओ का त्रास होतोय काही? चालू आहे घेतली काही वायर झाली फक्त ते कसं ते पहिले आम्ही जॉईन केलं
Yes, B2A होगा because higher concentration to lower concentration movement will occur. Very good, Ishita. Fantastic, lovely. So basically यहाँ पे जो movement होगा वो movement होगा from solution B to solution A. Till what time? कब तक ये चालू रहेगा? Till equilibrium is established. Yes, till the equilibrium is achieved. मतलब the concentration of the solution in A and B will remain constant, same. जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? Isotonic solution. बराबर है? आप लोगों ने बचपन में पढ़ा था 10th स्टैंडर्ड में, ठीक है? तो उसको हम लोग बोलते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन. तो वैसा बनते हो. जैसे अभी ये वाला भी है, जैसे फॉर एग्जांपल वी हैव दिस इज हाइपोटोनिक सॉल्यूशन. हाइपोटोनिक मतलब क्या? लेस सोल्यूट मोर सॉल्वेंट. बराबर है? सॉल्वेंट यहाँ पे ज्यादा है. This one is naturally hypertonic solution. मतलब क्या? Here we have more solute and less solvent. So मतलब movement जब पानी का होता तो it will be from hypotonic to hypertonic. So water will always move from hypotonic solution to hypertonic solution. ये समझ में आ रहा है? Hello. हाँ. Are you all getting this? Okay. चलो गुड. अमन को इसे समझ में आया मेरे ख्याल से, और इशिता को समझा. ठीक है, गुड. गुप्ता जी की बेटी को समझ में आया. नाइस. तो ये सेम है, सिर्फ हम लोग थोड़ा सा अलग तरीके से उसको समझ रहे हैं. ओके, सेम प्रोसेस है लेकिन उसका तरीका समझने का अलग है. एंड दिस इज आइसोटोनिक ना. आइसोटोनिक मतलब क्या? द इक्विलिब्रियम इज मेंटेन्ड, सो देयर इज नो मूवमेंट टेकिंग प्लेस. सो द कंसंट्रेशन ऑन बोथ द साइड्स इज सेम. Yes, good, Minal. Minal has also understood. So concentration on both the sides is equal, and as the concentration of the solution is equal, so naturally the movement of the molecule will stop. ये होगा ही नहीं. ठीक? So इसको हम लोग बोलते हैं isotonic solution. So no net movement will be seen. अच्छा, ये movement की वजह से cells में changes आते हैं. बराबर है? सपोज ये हम लोगों ने तो सॉल्यूशन की बात की या फिर कुछ कंटेनर की बात की, बट सेम इफ इट इज टेकिंग प्लेस विद इन द सेल, अराउंड द सेल, तो नेचुरली इसमें क्या होगा? इसमें चेंजेस आएंगे ना. जैसे फॉर एग्जांपल इफ द सॉल्यूशन इज हाइपरटोनिक, तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है? द वाटर विल स्टार्ट मूविंग आउट फ्रॉम द सेल. कौन सा लास्ट स्लाइड ऋतुजा? ये वाला. थैंक यू. ओके, correct, Nishita. So here hypertonic solution में the movement of the water will take place outside, so naturally the cell will shrink. उसको हम लोग क्या बोलते हैं? flaccid. So exosmosis is taking place. Hypo मतलब कम and hyper मतलब ज्यादा. बराबर. But hypo and hyper is with respect to what? With respect to the solvent. हाइपो एंड हाइपर. With respect to solute. सोल्यूट की सॉल्वेंट. Solvent. सॉल्वेंट ना बेटा. Solvent. बराबर है ना. हाइपोटोनिक देखो क्या लिखा है हमने? लेस सोल्यूट एंड मोर सॉल्वेंट. सो इट इज विथ रिस्पेक्ट टू सॉल्वेंट, मतलब वाटर कॉन्सेंट्रेशन. हाइपो मतलब पानी कम, हाइपर मतलब पानी ज्यादा. समझा? Sir, but if we are saying hypotonic, that means The solution is yes, dilute. sir, got it. एंड हाइपरटोनिक मतलब द सॉल्यूशन इज एसिडिक, और रादर क्या क्या बोलते हैं हम लोग? डाइल्यूट के ऑपोजिट क्या होता है? Concentrated. कॉन्सेंट्रेटेड. समझा? Yes, sir. सो बेसिकली पानी कम मतलब पानी ज्यादा मतलब हाइपोटोनिक, पानी कम मतलब हाइपरटोनिक. समझा? इधर पानी ज्यादा Yes, है, sir. इसके लिए उसको हम लोग हाइपोटोनिक बोलते हैं. इधर पानी कम है, इसके लिए उसको हाइपरटोनिक बोलते हैं. ठीक है? अमन अमन अमन. चलो गुड. सो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में द सेल विल श्रिंक, वी कॉल दैट सेल एज फ्लैसिड. एक्सॉस्मोसिस इज टेकिंग प्लेस, पानी बाहर जा रहा है. द सॉल्यूशन इज हाइपरटोनिक, मतलब यहाँ पे पानी का कॉन्सेंट्रेशन कम है और इधर ज्यादा है. बराबर? तो बाहर आना चालू हो जाएगा ना पानी, और अगर पानी बाहर आएगा तो सेल श्रिंक हो जाएगा. तो होता है एक्सॉस्मोसिस, एक्सो मीनिंग आउटसाइड, and the condition is known as what? Plasmolysis, and the cell is known as a plasmolized cell. Correct? तो सेल वॉल तो एज इट इज रहेगा, सेल मेम्ब्रेन श्रिंक हो जाएगा. उसको हम लोग बोलते हैं प्लाज्मोलिसिस. समझ में आ रहा है?
वहीं if it is hypotonic then naturally the water will start entering in. सर जब पानी नॉर्मल सेम होगा तब क्या कहें? मतलब पानी नॉर्मल सेम मतलब क्या रे खुशी? दोनों जगह वाटर कॉन्सेंट्रेशन सेम रहेगा तो कुछ नहीं, आइसोटोनिक हो गया ना खुशी, तो वो आइसोटोनिक हो गया, सो इट इज सेम। या अच्छा, हाइपोटोनिक में क्या होगा? हाइपो मीनिंग लेस ना, तो यहाँ पे बाहर कॉन्सेंट्रेशन कैसा है? ज्यादा, अंदर कॉन्सेंट्रेशन कम है, मतलब सॉरी, यहाँ पे हाइपोटोनिक मतलब वाटर कॉन्सेंट्रेशन आउटसाइड इज मोर, पानी इधर ज्यादा है। हाइपरटोनिक अंदर है मतलब पानी कम है, तो पानी घुस जाएगा सेल के अंदर, so the water will enter in, and as the water enters in the cell will swell. The swelling of the cell is known as turgid, and as the water is entering inside the cell we call that as endosmosis. Endo meaning inside, ठीक है, and the cell will be known as deplasmolized. उल्टा हो गया ना, डीप्लाज्मोलिसिस मतलब पानी अंदर चला गया तो देखो सेल कैसा टर्जिड बन गया, मोटा हो गया। ओके, सो दिस इज हाइपोटोनिक। और तीसरा जो होता है दैट इज आइसोटोनिक, मतलब no movement is taking place, nothing happens here because concentration of water inside and outside is equal. अंदर भी उतना ही है जितना concentration water का बाहर है, and as the concentration of water outside and inside is equal, so we call that as isotonic. ठीक, Sir, last slide. हाँ, ये देखो लास्ट स्लाइड। डन? Yes, sir. ठीक है, so we have understood what is permeability, we have also understood what is osmosis. Now we need to understand these three important concepts. One is known as the osmotic pressure, the other one is known as turgor pressure, and the third one is known as the wall pressure. देखते हैं कि ये क्या है। अभी ऑस्मोसिस अच्छे से समझ में आया सबको? कोई कंफ्यूजन नहीं ना? ठीक है, चलो। नाउ व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर? ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? जैसे फॉर एग्जांपल हम लोगों ने ये प्रोसेस देखा होगा, है ना, these are resins, and if these resins are kept in water for some time they will look something like this. Now why this happens? ये कैसे होता है? कैसे होता होगा? the water is entering inside ना, क्योंकि हम लोगों ने इसको कहाँ रखा है? ये रेजिन को हम लोगों ने रखा है पानी के अंदर, बराबर है? पानी में मतलब यहाँ पे पानी के अंदर वाटर कॉन्सेंट्रेशन इज मोर, रेजिन के अंदर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर इज लेस, so water starts entering in and the resins they swell up. Yes, correct. Endosmosis, hypotonic वाला concept, right? Similarly, if you see here potato का अगर ऐसे slices हम लोगों ने कट करके रख दिया और उसके बाद हम लोगों ने उसको पानी में डाल दिया, तो पानी में डालने के बाद it starts looking like this, correct? तो ये क्यों होता है? Why this particular size has changed? It is all because of the endosmosis. समझ में आ रहा है? So the osmosis is movement of the solvent or water through a semi-permeable membrane. Now the question is, till what time this movement will take place? The movement will take place till the time the equilibrium is achieved. बराबर है? तो let's take an example here, जहाँ पे we have a semi-permeable membrane in this U-tube, and now the concentration of water in this region is more, concentration of water in this region is less, so the water starts moving in like this, correct? लेकिन क्या होता है ना, while the water is, no, don't draw this, while the water is moving in like this, it naturally creates a pressure. यहाँ पे pressure create होना चालू हो जाता है, and that pressure is created because of the movement of the water molecule from the higher to lower concentration. अच्छा, movement of water molecule from higher to lower concentration is what? Osmosis. मतलब can I say that the pressure is created because of the osmosis? Therefore we call this as osmotic pressure. समझ में आ रहा है? And this pressure will allow only that sufficient movement. अदरवाइज क्या हो जाएगा ना, टिल द टाइम आइसोटोनिसिटी इज अचीव्ड, नहीं तो ना सेल फट जाएगा।
क्लियर? अदरवाइज एवरी टाइम द सेल विल बर्स्ट, लेकिन ऐसा होता नहीं है बिकॉज देयर इज समथिंग नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर व्हिच मेंटेन्स द इक्विलिब्रियम. Pressure will be created only on the side, more on the side where the water is moving ना. लेकिन ये साइड में भी तो कोई प्रेशर चाहिए, तो वो दूसरा प्रेशर है, वो मैं बोलता हूं आपको. श्रावणी, समझा आपको? कौन सा लास्ट स्लाइड चाहिए सानिका घोड़के? ये लिखा है बेटा आपने, ऑस्मोसिस का कॉन्सेप्ट है. डोंट राइट दिस. Is it the same pressure exerted by vacuoles? Yes, correct. So vacuole भी swelling आता है ना, vacuole का. Vacuole will also swell up. लेकिन vacuole का swelling एक particular limit तक होता है ना, उसके बाहर जाता नहीं है. Because the pressure is exerted by the movement. लेकिन अगर वो movement बहुत ही ज्यादा continue रहा, meaning the solution is not changing, then naturally the cell will burst. Are you all getting this? काय झालं रे? ते कट करू राहिले लोक. ओके, मैं वापस आया. हाँ, क्या प्रॉब्लम था? खुशी, ये क्या क्वेश्चन है बेटा तेरा? सर, कैन डेड सेल्स एग्जिबिट इन ऑस्मोसिस? व्हाट डू यू थिंक खुशी? कैन डेड सेल्स एग्जिबिट ऑस्मोसिस? डेड सेल्स में क्या होता है? इम्बाइबिशन. हमेशा याद रखो खुशी. ओके सर, व्हाई डज वाटर एंटर इन सेल इन हाइपोटोनिक? मतलब क्या? इसका मतलब क्या होता है खुशी? सर, व्हाई डज वाटर एंटर इन सेल इन हाइपोटोनिक? सी, क्या होता है ना, थोड़ा ध्यान दो इधर. इसके लिए मैंने स्पेसिफिकली क्वेश्चन पूछा था कि ऑस्मोसिस आपको समझा है क्या? वी हैव अ सेल हियर. ये सेल के अंदर कुछ एनवायरमेंट है, ये सेल के बाहर कुछ एनवायरमेंट है. ऑलवेज रिमेंबर, वी हैव सॉल्यूशन अराउंड अ सेल, इनसाइड द सेल. खुशी, अब ये सॉल्यूशन में अगर यहाँ पे इनसाइड द सेल इफ द वाटर कॉन्सेंट्रेशन इज मोर और बाहर वाटर कॉन्सेंट्रेशन कम हो गया, मतलब इज देयर एन इक्विलिब्रियम अराउंड द सेल? हाँ,
सेल के आजू बाजू में, मतलब सेल और सेल के आजू बाजू में इक्विलिब्रियम है क्या? खुशी, अंदर पानी ज्यादा है बाहर कम है, मतलब ये है क्या, इक्विलिब्रियम मेंटेन्ड है क्या? नो. सो व्हाट इज दैट विच इज रिक्वायर्ड फॉर द मेंटेनेंस ऑफ इक्विलिब्रियम इज द ऑस्मोसिस. तो अंदर का पानी बाहर आएगा ना, लेकिन ये अंदर का पानी बाहर कब तक आएगा? जब तक इक्विलिब्रियम मेंटेन होता है. मतलब कॉन्सेंट्रेशन वाटर का बाहर उतना ही है जितना अंदर है. जब ये इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाएगा तो उसके बाद मूवमेंट बंद हो जाएगा. आर यू गेटिंग दिस? हाँ, तो इसके लिए ऑस्मोसिस की और ऑस्मोटिक प्रेशर की जरूरत होती है, और ये मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए प्रेशर होता है. मतलब जब ऑस्मोसिस हो रहा है ना, तो दिस ऑस्मोसिस इज ओनली क्रिएटिंग अ प्रेशर within the cell or outside the cell, so that this equilibrium will be maintained and balanced and it doesn't go beyond that. क्योंकि उसके ऊपर चला गया तो सेल फट जाएगा या सेल बहुत ही ज्यादा श्रिंक होके डेड हो जाएगा. इसके लिए ये प्रेशर की जरूरत होती है. ठीक है, तो जैसे अगर यहाँ पे आप देखोगे ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन, yes, correct Aditya, it's like an interstitial fluid. You can take an example like this, extracellular fluid or interstitial fluid. Now osmotic pressure of a solution is what? It is the pressure needed to prevent passage of pure water, that is solvent, into it through a semi permeable membrane. मतलब ये pressure जब exert होता है ना, तो it doesn't allow further movement of the water. And if it is not allowing the further movement of the water, मतलब अब ये solution कैसा बन गया? ये solution बन गया isotonic. So we call that as osmotic pressure of a solution. So what is osmotic pressure of a solution? It is the pressure needed to prevent passage of pure water, मतलब solvent, into it through a semi-permeable membrane. Correct? तो ये information सिर्फ पहले लिख लो. जैसे for example we have a glass tube here. Here we have a dissolved solutes, semi-permeable membrane है, और यहाँ पे कौन है? Solvent है, यानी pure water है इस फ्लास्क के अंदर. Now the pressure will be exerted in such a way that the movement will stop. जैसे अगर हम लोगों ने यहाँ पे प्लंगर लगा दिया, उसको अगर प्रेस किया, तो अगर इसका प्रेशर रहेगा तो मूवमेंट विल नॉट टेक प्लेस. मतलब दिस प्रेशर, इसने जो प्रेशर क्रिएट किया है, इट हैज नॉट अलाउड द वाटर टू एंटर इन. So this is known as osmotic pressure of a solution. ये solution है अंदर, ये solvent है बाहर, ये pure है, ये pure नहीं है क्योंकि इसके अंदर solutes है. तो ये solution ने अपना एक pressure create किया जिसकी वजह से अभी pure water अंदर आ ही नहीं रहा है. तो उसको हम लोग बोलते हैं osmotic pressure of a solution. तो अभी दो चीजें, एक होता है osmotic pressure, अब ये दूसरा हम लोग पढ़ रहे हैं, that is osmotic pressure of a solution. पानी बाहर नहीं निकला है, पानी वैसे के वैसा ही है. ये प्रेशर के लिए हम लोगों ने ऐसे दिखाया है डायग्रामेटिकली, लेकिन ये सॉल्यूशन का प्रेशर ऐसा रहेगा कि ये पानी अंदर ही नहीं जा पाएगा. गेट इन दिस? ठीक है, सो समझा? ये मैकेनिज्म इस तरीके से होगा. जैसे यहाँ पे उन्होंने एक एग्जांपल दिया है, मेरे ख्याल से दिस माइट हेल्प यू टू क्लियर सम ऑफ द कॉन्सेप्ट्स. कि अभी इन्होंने क्या किया है, जैसे फॉर एग्जांपल वी हैव अ 5% अल्ब्यूमिन. ठीक है, एक रीजन में 5% अल्ब्यूमिन है, दूसरे रीजन में 10% अल्ब्यूमिन है. बराबर है. अभी मूवमेंट विल टेक प्लेस, सो मेम्ब्रेन इज परमिएबल टू वाटर एंड नॉट टू अल्ब्यूमिन. अगर यहाँ पे 5% अल्ब्यूमिन है और यहाँ पे 10% अल्ब्यूमिन है, मतलब पानी किधर ज्यादा है? पानी किधर? सपोज मैंने इसको A इसको B दिया, तो A में ज्यादा पानी है कि B में ज्यादा पानी है? A में. मतलब पानी A से किधर जाएगा? B में. तो कैन यू सी वाटर लेवल यहाँ पे बढ़ गया, वाटर लेवल यहाँ का कम हो गया. और ये मूवमेंट कब तक रहा? जब तक दोनों का कॉन्सेंट्रेशन, अल्ब्यूमिन का कॉन्सेंट्रेशन दोनों जगह 7.5% और 7.5% रहा. समझ में आ रहा है? लेकिन यहाँ पे प्रेशर कैसा हो गया? लो. और ये वाले, सपोज ये B है और ये A है, तो A में प्रेशर कैसा हो गया? लो. और B में प्रेशर कैसा हो गया? हाई. क्योंकि मूवमेंट हो गया ना, इसके लिए. आर यू गेटिंग दिस? हेलो. ठीक है,
सो इधर 10% एल्ब्यूमिन है। जब तक ये मूवमेंट कब तक चालू रहेगा, जब तक कॉन्सेंट्रेशन इक्वल नहीं हो जाता तब तक, ठीक है। So this is known as osmotic pressure. So osmotic pressure is directly proportional to the solute concentration. Okay? So जैसे प्योर सॉल्वेंट, एकदम प्योर वाटर रहेगा, इसके अंदर कोई भी सॉल्यूट नहीं है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर कैसा रहेगा, 0। लेकिन इसमें अगर मैंने सोल्यूट्स को ऐड करना चालू कर दिया तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। आर यू गेटिंग दिस? मतलब सोल्यूट जितने ज्यादा ऐड होंगे ऑस्मोटिक प्रेशर उतना बढ़ेगा, जितने सोल्यूट कम रहेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर उतना कम रहेगा। और प्योर सॉल्वेंट में ऑस्मोटिक प्रेशर इज ऑलवेज 0। आर यू गेटिंग दिस? Yes, perfect. ठीक है। So the osmotic pressure of a solution is always, osmotic pressure of a solution will always be, yes, greater than less than नहीं है, Greater. greater than the Greater than. pressure of a solvent। मतलब सॉल्यूशन का प्रेशर हमेशा ज्यादा रहेगा, सॉल्वेंट का हमेशा कम रहेगा। तो सपोज इफ वी टेक एन एग्जांपल हियर, वी हैव अ A रीजन एंड अ B रीजन। नाउ दिस इज व्हाट, ये वाला कैसा रहेगा, यहाँ पे वाटर ज्यादा है ना, सॉल्वेंट ज्यादा है और सोल्यूट्स कम है, मतलब यहाँ पे प्रेशर कैसा है, प्रेशर कैसा है, लो। यहाँ पे क्या हो रहा है, सॉल्यूशन यानी सॉल्वेंट ज्यादा है और सोल्यूट्स कम, सॉरी सोल्यूट ज्यादा है और सॉल्वेंट कम है, तो यहाँ पे प्रेशर कैसा रहेगा, हाई। सो मतलब कहना है इसे, सो हाउ द मूवमेंट विल टेक प्लेस हियर, हाउ द High मूव, to low. हाँ Sir, कैसे high क्या? to low. From A to B. फ्रॉम A to B। सो बेसिकली यहाँ पे लो ऑस्मोटिक प्रेशर है, मतलब वाटर ज्यादा है, और एक मिनट, और सोल्यूट कम है, करेक्ट? Yes. हाँ, और इधर क्या हो गया, वाटर का कॉन्सेंट्रेशन कम है और सोल्यूट ज्यादा है। सो मूवमेंट विल टेक प्लेस फ्रॉम लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर टू हायर ऑस्मोटिक प्रेशर। आर यू गेटिंग दिस? Yes. Yes. Good. तो मतलब osmosis can also be defined as the movement of the water molecule from the lower osmotic pressure to the higher osmotic pressure। समझा? हेलो, हाँ, Yes. सबको समझ में आ रहा है ना? इसलिए मैंने बोला कि ऑस्मोसिस का कॉन्सेप्ट फिट करो तो ये सब समझ में आएगा। ऑस्मोसिस और ऑस्मोटिक प्रेशर अगर अच्छे से समझा तो ही ये समझेगा, नहीं तो आगे चल के कंफ्यूजन 100%। ठीक, अच्छा हाँ सर, जहाँ पे लो प्रेशर है वहां पे वाटर ज्यादा है, एंड जहाँ पे ज्यादा प्रेशर है वहां पे वाटर को भी अगर आप बाजू में रखते हो ना अमन, तो आप सोल्यूट की बात करो ना, फॉरगेट वाटर, सोल्यूट की बात करो। इधर सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन कैसा है, कम है, इधर सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन कैसा है, ज्यादा है। अगर सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन कम है मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर कैसा है, लो। अगर सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर कैसा है, हाई। अगर सोल्यूट कम है मतलब सॉल्वेंट कैसा रहेगा, ज्यादा। सोल्यूट यहाँ पे ज्यादा है मतलब सॉल्वेंट कैसा रहेगा, कम। और वाटर कैसे मूव होता है, फ्रॉम हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन ना। समझा? शिमड़े लोग समझ में आ रहा है क्या? हेलो, Yes. हाँ चलो 1-2 मिनट रुको, देयर इज वन स्टूडेंट विद अ डाउट, आई विल क्लियर हिज डाउट एंड देन विल स्टार्ट।
Student, just give me a minute. Huh? चलो आ गया मई आ गया मतलब सॉल्यूशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। अच्छा अभी वो तू ना अलग अलग मीनिंग मत निकाल। ऋतुजा इज सेइंग वी आर नॉट शेमडे लोग बट हमें समझ में आ रहा है। अच्छा सुनाई दे रहा है मेरी आवाज? So the movement of the water molecule will take place from the low osmotic pressure to high osmotic pressure. ठीक है एक बार इसको रिवाइज करो तो आपको समझ में आ जाएगा। Take an example here we have a cell wall. बराबर है
सेल वॉल के अंदर क्या रहेगा ब्लू कलर का, फिर सेल मेम्ब्रेन, अंदर कुछ वाटर मॉलिक्यूल या सब्सटेंसेस है, सो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है विच इज सेमी परमिएबल. नाउ द एनवायरमेंट आउटसाइड दिस सेल इज फुल ऑफ वाटर, प्योर सॉल्वेंट, लेकिन अंदर क्या है, सॉल्यूशन. मतलब अभी आप मुझे बोलो ऑस्मोटिक प्रेशर अंदर कैसा है और बाहर कैसा है. अंदर ऑस्मोटिक प्रेशर इनसाइड इज हाई, High. और आउटसाइड इज लो. Low. मतलब water will move from lower osmotic pressure to Higher osmotic. correct. So we call this as what, osmosis, endosmosis. पानी अंदर घुस जाएगा. So this solution, because it is osmotically active, so it starts creating this movement. तो जैसे ही पानी अंदर आएगा, what will happen, the cell membrane will start becoming swollen. So turgid होना चालू हो जाएगा सेल. करेक्ट. नाउ विल, व्हाट विल बी द, अभी क्या हो रहा है ना, यहां से अंदर से टर्जिडिटी आ गया सेल को, मतलब देयर इज अ प्रेशर विच इज एक्सर्टेड बाय द सेल फ्रॉम इनसाइड बिकॉज ऑफ द टर्जिडिटी. आदित्य अभी एक्टिव पैसिव कहां ला रहा है बेटा, ये सारा पैसिव ट्रांसपोर्ट ही चल रहा है बब्बू. आदित्य समझ रहा है बेटा. हाँ, तो अभी यहाँ पे क्या हो गया, सेल बन गया टर्जिड. सो दिस टर्जिडिटी विल क्रिएट अ प्रेशर फ्रॉम इनसाइड. अंदर से प्रेशर क्रिएट करना चालू करेगा ना, समझ में आ रहा है. सो वी कॉल दिस एज व्हाट, द प्रेशर विच इज क्रिएटेड बाय द टर्जिडिटी इज नोन एज द टर्गर प्रेशर. और ठीक है, समझ में आ रहा है, वॉल प्रेशर में बाद में बोलता हूं. दिस इज नोन एज द टर्गर प्रेशर. टर्गर प्रेशर मतलब क्या, द आउटवर्ड प्रेशर ऑन द सेल वॉल बाय द प्रोटोप्लास्ट. मतलब अंदर से जो प्रेशर आ रहा है बाहर की तरफ. अच्छा, बिकॉज ऑफ दिस प्रेशर देयर आर चांसेस दैट द सेल विल बर्स्ट, फट जाएगा. लेकिन सेल फटता है क्या, नहीं. क्यों नहीं फटता है, बिकॉज आउटसाइड वी हैव cell wall, and can I say that the cell wall will also create its pressure from for the inside substances. तो सेल वॉल क्या करेगा, अपना खुद का प्रेशर डालेगा, तो उसको हमने क्या नाम दिया है, वॉल प्रेशर. तो वॉल प्रेशर कैसा रहेगा, इनवर्ड प्रेशर बाय द सेल वॉल टू द इनसाइड ऑफ द सेल. मतलब टर्गर प्रेशर आउटवर्ड प्रेशर रहता है, वॉल प्रेशर रहेगा इनवर्ड प्रेशर. एंड बोथ दिस प्रेशर विल मेंटेन द आइसोटोनिक स्टेट. श्रावणी, आइसोटोनिक स्टेट में ही ये प्रेशर रहेगा. ठीक है. सो इट मेंटेन्स द आइसोटोनिसिटी एंड देयरफॉर टर्गर प्रेशर विल ऑलवेज बी इक्वल टू वॉल प्रेशर. ठीक, जितना टर्गर प्रेशर रहेगा उतना ही वॉल प्रेशर रहेगा. यहां तक ठीक, गुड. समझ में आ रहा है ये सर. मतलब अगर एग्जॉस्मोसिस करना है तो वॉल प्रेशर वाला प्रेशर ज्यादा, ऐसा नहीं है अमन, वो एग्जॉस्मोसिस एंडोस्मोसिस का इधर मत ला. अभी पहले ये समझ लो कि ये सिचुएशन है. हाँ, अगर यहाँ पे सोल्यूट यानी सॉल्वेंट अंदर ज्यादा है और बाहर कम है तो नेचुरली बाहर जाएगा ना, मतलब प्रेशर कम हो गया. किसका प्रेशर कम हो गया, टर्गर प्रेशर कम हो गया ना, क्योंकि टर्गर प्रेशर कम हो गया मतलब सेल श्रिंक हो गया. टर्गर प्रेशर कम हो गया तो नेचुरली वॉल प्रेशर भी कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा. लेकिन उसमें कुछ समझ में नहीं आएगा ना अपने को. हम लोगों को प्रेशर समझना है, तो प्रेशर कैन बी अंडरस्टूड ओनली व्हेन इट इज हायर, राइट, इन द सेल, इन द प्लांट सेल. तो इसके लिए हम लोग हाई प्रेशर की बात कर रहे हैं. ठीक, गुड. अभी और एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है, दैट्स कॉल्ड एज डिफ्यूजन प्रेशर. तो हम लोगों ने ऑस्मोटिक प्रेशर, टर्गर प्रेशर और वॉल प्रेशर तो देख लिया. अभी हम लोगों को पढ़ना है व्हाट इज डिफ्यूजन प्रेशर एंड व्हाट इज डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट. सो व्हाट इज डिफ्यूजन, क्योंकि अभी सिर्फ 10 मिनट बचे हैं. शुड वी और वी शुड नॉट, बोलो जल्दी. परसों पढ़े इसको, क्योंकि वापस डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट में प्रॉब्लम आएगा. थोड़ा सा बड़ा कॉन्सेप्ट है. चलो परसों पढ़ दे, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट है थोड़ा सा बड़ा, तो वापस उसमें टाइम जाएगा. ठीक है, मेरा थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम गया बीच बीच में लेक्चर में, अदरवाइज ये हो जाता था. ओके, जितना पढ़ा है हम लोगों ने उतना सिर्फ रिवाइज करो अच्छे से. फाइन, एंड वी विल स्टॉप हियर. चलो बाय बाय, थैंक यू.
Thank you. Thank you, Yes. sir. Bye. Bye bye. Bye bye. See you.